Hello students, welcome to Abhipedia powered by Amanyu IAS. As you all know, Amanyu IAS has launched a PCS prelims preparation free MCQ course. ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ 1 ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ अपने YouTube चैनल ਤੇ ਅਮਨਯੂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਟੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਸੈਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 2 ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ पंजाबी लैंगुएज की PCS प्रीलिम्स ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी इंपोर्टेंस है, क्यों ਆਪਾਂ पंजाबी लैंगुएज ਦੇ इस पार्ट से इंफेसाइज करिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ਅਸੀਂ पंजाब तो हाँ पंजाबी साडी मदर टंग है, वो इस पोर्शन ਨੂੰ इग्नोर कर देंगे ने। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ PPSC ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ PCS ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਪੇਪਰ 1 ਤੇ ਪੇਪਰ 2 CSET ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਪਰ 2013 15 ਤੇ 18 ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ MCQ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਿਲਡਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ 180 ਪਲੱਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 180 ਪਲੱਸ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 19, 18 ਚ 15, देखो कि 60 नंबर का पेपर 57 ऑनर है 57 हो गया, ये 47 37 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੇਪਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ PPSC ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ PCS ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 4 ਜਾਂ 5 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਂਟੋਨਿਮ ਸਿਨੋਨਿਮ। ਐਂਟੋਨਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਟੋਨਿਮ ਨੂੰ ਐਂਟੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਸਿਨੋਨਿਮ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਆਕਰਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
उस तो बाद अगला टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਣੇ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜ ਅਖਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਣਗੇ, ਅਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग पूछे जाएंगे ਜਾਂ ਅਖਾਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਬੇਰ ਛੋਲੇ ਗਾਜਰਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਆਕਰਨ, ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। व्याकरण सब तो पहला व्याकरण किसी एक भाषा की व्याकरण होएगी, तो इसलिए आपां नूं जानना जरूरी है भाषा। भाषा की हुंदी है, भाषा तो बाद कि नाल ही इस किन्नियां उपभाषावां ने। यह प्रश्न थोड़े GS पेपर 1 दे विच भी आ सकते हैं कि उपभाषावां माझी, मलवई, पुआधी, दुआबी कित्थे कित्थे बोलियां जांदियां ने। उस तो बाद लिपि, भाषा को लिखण लई कोई लिपि होएगी, तो अपनी लिपि की है गुरमुखी। पाकिस्तान दे विच लिपि की है शाहमुखी। तो इस तरह अपने 35 अखरी, अपनी गुरमुखी की 35 अखरी है, उस दे विच बाद दे विच फारसी के प्रभाव दिन किन्ने अक्षर ऐड होए, वो सारा देखना है। ये तो आ गया स्टार्टिंग। उस तो बाद व्याकरण दे विच व्याकरण दे विच आपां 4 डिविजन कर सकते हैं। पहला की आएगा धुनी बोध, फिर धुनियां तो मिलकर की बन गए शब्द, शब्दां तो मिलकर की बन गए वाक, ते फिर इस तो बाद एक नाल है कि हर एक चीज़ का एक अपना अर्थ होएगा, अर्थबोध। कोई भी कुछ कर रहे हैं, आप किसी अर्थ लिए कर रहे हैं। हुण मेन है कि धुनी बोध दे विच की, धुनी बोध दे विच आपां की कवर करना है, की तैयारी करनी है धुनी बोध दे विच। तो धुनी दे विच मेन की धुनियां किहनूं कहंदे ने, जिस तरह ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, जो अपनी सारियां 35 अखरी ने, ये 35 धुनियां ने, अलग अलग स्वर धुनियां, व्यंजन धुनियां। तो उस दे विच भी अगे फिर डिविजनस ने स्वर व्यंजन दे विच, ठीक है। जिस तरह व्यंजन, आप व्यंजन से देखांगे हुण, व्यंजन व्यंजन इतना डिटेल करते हैं। व्यंजन व्यंजन दे विच किस तरह, पहला कक्का, खखा, गग्गा पहली लाइन है। ये इन्हां चों कंठी कौन है, कंठी जिस तरह ये कंठी पूछ सकते हैं। कदे PCS दे विच अगे पहला नहीं पूछा गया, पर PPSC द्वारा कराए गए दूजे पेपरां दे विच ये पूछा गया कि कंठी व्यंजन जां होंठी व्यंजन हुंदे ने। जिस तरह पप्पा, फफ्फा, जिन्होंने बुलाते हुए पप्पा फफ्फा अपने बुल आपस विच मिलते हैं। कंठी जो अपने गले चो आवाज़ आती है, इस तरह तालवी, तालू, जीभ तालू में टच करती है, किस तरह, इस तरह। उस तो बाद धुनी बोध तो बाद आता है शब्द बोध। धुनियां तो मिलके, 2 धुनियां मिलके, स्वर धुनियां, व्यंजन धुनियां मिलके आपस दे विच शब्दां दी रचना करदियां ने। तो इस सब तो पहला क्या है अपना शब्द शब्द बोध, शब्द रचना, ठीक है। हुण शब्द रचना दे विच किस तरह पेपर दे विच की आएगा, शब्द रचना च, शब्द रचना पेपर चलता है अगेतर पिछेतर। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस अगेतर केड़ा है, पिछेतर केड़ा है, जो कई क्वेश्चनों के भी अगेतर नहीं है, पिछेतर नहीं है। इस तरह
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਹਰਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ ਹਾਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕਨੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਹਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਰੂਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਵਾਕ ਬੋਧ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300-400 ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਰਥਬੋਧ। ਅਰਥਬੋਧ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ? ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ, ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਨ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ? 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਪੜਨਾਮ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? नाम पड़नाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेष, क्रिया, फिर क्रिया विशेषण। ठीक है ना, 5 6 7 अपने 8 रह गए। फिर उस तो बाद क्रिया विशेषण, ठीक है, योजक, संबंधक ते विस्मिक। हो सकता है कि इन्होंने कुछ टॉपिक ऐसे हो जिन्होंने कदे आज तक कोई प्रश्न ना आए हो, पर आप टॉपिक एक बार करके जाने बहुत जरूरी ने, क्योंकि PPSC द्वारा पहला लए गए होर पेपरों के इन्हों चो क्वेश्चन आए हुए हैं। हुण आप देखांगे डिटेल्ड के जो 23 प्रश्न आए थे तो टॉपिक वाइज किस तरह आए हैं सिलेबस के हिसाब नाल। तो सब तो पहला सिलेबस अपना टॉपिक सी कंप्रीहेंशन। तो देखिएगा 12 क्वेश्चन आए ने पहला 2013 के 2015 च आए ने 9 तो 2018 च आए ने 4। फिर उस तो बाद अपना दूजा टॉपिक की सीगा एंटोनिम सिनोनिम। उस दे विचों देखोगे 4 प्रश्न इत्थे आए 3 इत्थे आए ने। वैसे देखा जाए जो कंप्रीहेंशन सीगा इस दे विच 3 प्रश्न जो आए सी वो असल दे विच कंप्रीहेंशन दे विच जो कुछ शब्द सीगे उन्हां दे समानार्थक या विरोधी पूछे गए सी वो कितना किते सीधे या सीधे तौर पर कह सकते हैं इस दे पार्ट ने। कुल मिला के कह सकते हैं कि इस पेपर दे विच 7 प्रश्न समानार्थक आए सी। ते उस तो बाद फिर मुहावरे अखान 2 प्रश्न, फिर 6 3, ठीक है ना। वेरीएशन देख सकते तुसीं ये नहीं कह सकते कि आप इस टॉपिक को कर लांगे इसमें छड्ड दांगे, इसमें देख के सोचोगे 15 के पेपर में देख के सोचोगे मुहावरे अखान कर लिए ये चीज़ां ना करिए, पर एक बार तुहानूं सारे टॉपिक्स करने जरूरी ने। ये तो हो गया अपने सिलेबस का एक पार्ट 2 नंबर, ठीक है, 3 तो हो गए। बाकी सारा ये पोर्शन अपना कितना किते ग्रामर का ही पार्ट है। जिमें शुद्ध अशुद्ध 2 प्रश्न आए थे इत्थे 4 आए,
फिर इंग्लिश टू पंजाबी, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, ये आ गया अपना शब्द रचना दे विच या शब्दां जिस तरह सरकारी जो दफ्तरी शब्दावली है, सरकारी शब्दावली है, जो ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां नाल संबंधित शब्दावली है, तो उस दे विच उन्होंने की कहंदे ने। फिर जेंडर लिंग बदलो दे विच, परफिक्स अगेतर पिछेतर, ये शब्द रचना का पार्ट हो गए। तो 33 काल पूछना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो उसका की काल है। हुण तुसीं इसनूं मतलब कि देख के अंदाजा लगा सकते हो कि 2018 दे विच इन्हां ने पैटर्न बिल्कुल बदलता। इस पेपर इन्हां 3 टॉपिकां दे विचों एक प्रश्न आया, जो कि कुल मिला के देखोगे एक प्रश्न है। कुल मिला के इत्थे किन्ने बन गए? 4 10 नंबर का अपना पेपर, जो कि पहला नहीं आया कदे। जिस तरह ये पोर्शन हो गया, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी पहला एक बार प्रश्न आया, उस तो बाद कदे आया नहीं, पर अपन इस बार करना है, इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। एंटोनी सिनोनी हमेशा इंपोर्टेंट रहता है, 15 के नहीं आया क्वेश्चन, पर कोई गल नहीं। लेकिन ओवरऑल तुसीं साडी स्ट्रैटेजी जो अपनी इत्थे होनी चाहिए है, वो ये है, ठीक है ना। हुण अपना मेन तीजा टॉपिक सी वो सी स्ट्रैटेजी, ठीक है। पहला आप देखेंगे प्रैपरेशन की स्ट्रैटेजी की है, वैसे मैं दस ही चुका, ठीक है ना। जो प्रैपरेशन की स्ट्रैटेजी के तैयारी किस तरह करिए, आप पंजाबी च देखिए, पंजाबी की कहने हैं, ठीक है ना। पंजाबी पूछते इंग्लिश टू पंजाबी सानूं पता होना चाहिए, प्रैपरेशन कहते हैं तैयारी। तो इस तैयारी के सब तो है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन, तुसीं इस सारे सिलेबस नूं चंगे तरीके नाल कवर करना है। पर सब तो उस तो पहला की करना है कि जो सिलेबस का पार्ट है, जो सिलेबस के पार्ट के विचों जो क्वेश्चन पहला पिछले सालों आए हुए हैं, पहला वो टॉपिक करने आपां, फिर उस तो बाद जो बाकी ग्रामर है वो भी सारी करनी है, ठीक है। हाँ, हुण अज दे लैक्चर का अपना चौथा टॉपिक कि आप पिछले सालों के कुछ प्रश्न देखांगे, तो उन्होंने प्रश्नों को तुसीं अटैम्प्ट, तुसीं अपने नाल हुण नोटबुक लै लो, पेन लै लो, तो नाल सारे क्वेश्चन अज तुहानूं 12 या 13 प्रश्न करावांगे, तो उसदे विच तुसीं नाल अपने आंसर भी लिखने ने, तां जो तुहानूं पता चल सके कि तुसीं कित्थे स्टैंड करदे हो। खुद नूं सैल्फ वैल्यूएट करना भी बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न अज दा जो PCS 2013 का सी, काल दी बद्धी ना मंगिया पर बाल दी बद्धी मंगिया दा सही अर्थ किहड़ा है, ठीक है। ये अपना वाक रचना दे विचों, मुहावरे खाना दे विचों प्रश्न आया कि काल दी बद्धी ना मंगिया पर बाल दी बद्धी मंगिया। उस पहला है अपने लिए हथ ना फैलाना पर बच्चों लिए हथ अड्डना, देखो। दूजा उस है अपना स्वार्थ देखना पर न्याणियां नूं तंगी विच रखना। फिर है आप आराम करना पर बच्चों तो मजदूरी करवाना। तो उस तो बाद है कि आप बन ठन के रहना, ठीक है। उस पर नीचे नहीं आ रहा थोड़ा, तो उस इत्थे भी है कि न्याणियां नूं तंगी विच ही रखना। थोड़े को 10 मिनट का समय, ठीक है। तुम वीडियो में पॉज कर लो, ठीक है। हम मैं आंसर दस देना इत्थे की है, कोई खुद देखोगे। कई बार हो सकता है कि तुम अखान मुहावरा, हुण इत्थे यही अपनी स्ट्रैटेजी आ जाती है कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है। हो सकता है कि तुम अज कदे पढ़िया ही ना हो अखान, ठीक है। तुम ये अखान कदे पढ़िया ही ना हो, काल दी बद्धी ना मंगिया पर बाल दी बद्धी मंगिया, पर फिर भी अखाना की खासियत है कि तुम ध्यान नाल पढ़ोगे, ये तुहानूं अर्थ मिल सकता है। इसका अर्थ क्या है, इस आंसर की है ए, अपने लिए हथ ना फैलाना पर बच्चों लिए हथ अड्डना, ठीक है। ये अपना 2013 का प्रश्न सी। उस तो बाद है यह है शुद्ध अशुद्ध दे विचों, आप हर एक टॉपिक में टच करांगे। अज पहला सीगा अपना वाक रचना दे विचों, हुण है शब्दों के विचों कि शुद्ध अशुद्ध लिखना है। हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द सही है, ठीक है। देखो इत्थे तीन बिंदियां ने ते 2 ने, इत्थे की है खखे पैर बिंदी नहीं है, इत्थे पहले सस्से पैर च बिंदी नहीं है। हुण पेपर दे देखण च लगदा कि शख्सियत पहले तुहानूं ये पता होना चाहिए कि शब्द नूं बोलदे की ने। तुसीं सारे 10 5
5-10 सेकंड लैके इसका आंसर अपने को लिखो, फिर उस तो बाद दसांगे इसका आंसर की आंदा है। ठीक है, इसका आंसर है बी, क्योंकि इसमें बोलते शख्सियत, इतने शीयत नहीं बोलते, सीयत। फिर है पंजाबी शब्द कट्टरता लई अंग्रेजी का केड़ा शब्द ढुकमा है। ठीक है, कट्टरता, धार्मिक कट्टरता इस तरह कहते, या किसी भी अपनी सोच दे विच कट्टरता जो कहने आपां, उस लिए अंग्रेजी का केड़ा शब्द ढुकमा है ना। इंग्लिश टू पंजाबी दे विच ये 2018 दे विच प्रश्न आया कि पंजाबी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पंजाबी दे विच। ठीक है, हुण इस दस दिया यह है जेलसी, ईर्खा, इसका आंसर है बी, जोलॉटरी, फेमिनिस्ट, गीको। ठीक है, इन्होंने अर्थ भी देख सकते हो अलग अलग की अर्थ ने, जिस इसका अर्थ है कि ज़्यादा भुखे होना रहना, तो गीको एक तरह की छिपकली। तो ये शब्द कुछ इस तरह के कि थोड़ा आम जो तरह वोकैबलरी, क्योंकि इंग्लिश के भी एंटोनिम सिनोनिम आते हैं। ठीक है, तो उत्थे भी तुम तैयारी करोगे जो एंटोनिम सिनोनिम, तो वो थोड़ा इधर भी हैल्पफुल है, तो इधर तैयारी करोगे थोड़ा उधर भी हैल्पफुल है। हाँ, हुण सब तो इंपोर्टेंट जो है अपना रीडिंग कंप्रीहेंशन, कि कदे पेपर दे विच 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 15 भी, 5 भी, पर मेन की है रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये मैं हुण खुद नहीं पढ़ूंगा, तुसी इसनूं हुण लो, वीडियो नूं पॉज करो। ठीक है, 2 मिनट पहले वीडियो नूं पॉज करके इसनूं पूरा ध्यान नाल पढ़ो। ते इस दे विच जो है कि तो सारे ने पढ़ लिया, देखो पॉज करता, पॉज करके एक बारी पढ़ लो। मेरे ख्याल से सारे ने पढ़ लिया होना है, तो अपन पॉज कर, तो हम आंसर दसन लगे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़िया वो पहला पीछे बैक करके पॉज करके पहला सारा एक बारी पैराग्राफ पढ़ लैन, तो क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करन। पहले इस पैरे विच बाणी की केड़ी रचना बारे गल की गई है, वो शुरू च दस रहे आपां नूं, जप बाणी, जप जी। अजोके युग के मनुख नूं बाणी के अर्थ क्यों समझ नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसमें हुण बड़ा बहुत ही ध्यान नाल करना है। देखो हर युग का मनुख अपने युग की भाषा समझ सकता है। तो लिखा बाणी की भाषा का सिरजनकारी संदर्भ है, बाणी के कोश अर्थ नहीं मिलते, बाणी की भाषा मनुखी समझ तो परे है। इसे आप देखांगे जब बाणी का बुनियादी दसेंगे, मानव जीवन की धर्ममूलक व्याख्या जुड़ी हुई है, तो जीवन आध्यात्मिक होंदा मिला के वर्ते के सिद्धांत इस समूचे प्रबंध को समकालीन मुहावरा समझा जाए। इस रचना का मुहावरा जो कि मनुखी संवेदना तो दूर है। हुण इत्थे लिखा सिर्फ मनुख की संवेदना तो दूर है, देखो ठीक है ना, पर यह नहीं लिखा कि मनुख के कोश जाए चीज़, ये उन्हें गलत हो गई। ठीक, उस तो बाद वास्तव विच हर दौर विच रहने वाला मनुख केवल अपने युग की भाषा को समझ सकता है। जिस पैराग्राफ बहुत ध्यान में पढ़िया होगा, उस तो बाद प्रश्न च आके दोबारा फिर देखो इतने लिखे है, टच करो। ठीक है, इस तरह उस सर बीते समय साहित्य संदर्भ खोल के बाद सार्थक भाषा समझ सकता है, ये गल नहीं समझ। ठीक है ना, इतने लिखा हुआ है इस रचना विच भाषा सिरजनकारी के संदर्भ। ठीक है ना, इतने आ जाएगा बाणी की भाषा का सिरजनकारी संदर्भ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 1 and 2। थोड़ा इतने मिसिंग है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये थोड़ा पेपर मिल जाएगा 2013 का। उस तो बाद ठीक है, यही पैराग्राफ दे विच सी पैरे की रचना जप नूं पूर्ण रूप विच प्रसंगिक बनाउण लई किस पद्धर ते परखण दी लोड़ है। पैराग्राफ में देखो कितना आसान है, देखो बस पैराग्राफ में तुसीं ध्यान नाल पढ़ना है, उन्हें थोड़े माइंड च रिकॉल होना चाहिए कि हाँ कितने लिखा हुआ सी, एक बार दोबारा कन्फर्म करो तो टिक मारो। धर्मशास्त्री मॉडल, ठीक है ना, समुचे तौर पर इसकी सार्थकता ग्रहण करने लई इसनूं एक धर्म शास्त्री मॉडल वजों देखना पवेगा।
तो इसका आंसर आ गया डी। उस तो बाद उपरोक्त पैरे दा ढुकवां सिरलेख की है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, जप अध्ययन की समस्या, जप प्रति श्रद्धा, जप की विचारधारा, बाणी की धार्मिक भावनावां। ठीक है, तुसीं प्रश्न देख लिया। हाँ, हुण आपां पिछे दोबारा पैराग्राफ देखांगे। श्रद्धा विचारधारा, श्रद्धा विचारधारा कह रहे हैं समस्या या धार्मिक भावनावां। तुसीं देखोगे इसका मुढ़ला प्रेरणा स्रोत मनुख की अध्यात्मक समस्या है, संखेप विच मानव जी नाल जुड़ी हुई है। तो इसमें जो पूरा कि इस समस्या है कि इस समूचे प्रबंध को समकालीन मुहावरे समझा जाए, इसमें जो पूरा तुसीं ग्रहण करते हो तो लेखक जो है इत्थे वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जब जो अध्ययन है वो समस्या की है, वो की पॉइंट्स ने, है ना। इसका आंसर है ए। उस तो बाद है जूसा शब्द का की अर्थ है। देखो ये पैराग्राफ के जूसा शब्द आया, पर है कि यह समानार्थक, जो कि अपना दूसरा टॉपिक है, दूसरा नंबर एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, उसका पार्ट है एंटोनिम सिनोनिम का। दसो जूसा शब्द का की अर्थ है, काया, वजूद, भलाई, किरपा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, काया, वजूद। भलाई नहीं होंदा, किरपा नहीं होंदा। जूसा 1 and 2 बी। तुसीं आपदे आंसर लिखते रहोगे तां तक कि तुहानूं पता चल सके एंड च कि तुहाडे किन्ने सही होए सी प्रश्न। हुण फिर देखो ना, ढकी रिझे कोई ना बुझे 2015 का प्रश्न है। दा सही अर्थ की है, यह क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सी। ढकी रिझे कोई ना बुझे, वैसे तो इससे जो तुम ध्यान ना पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, इससे बीच ही समझ आ जाएगा कि कोई चीज़ जिस तरह आप कहने उबालनी रखी है वो अंदर ही रिझी जाए, पर किसी को पता नहीं उसके अंदर की रिझ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि दसो आंसर, भेत रखना, अंदर खाते सही जाना, उतावले होना, व्यर्थ कोशिश करनी। इसका आंसर है अंदर खाते सही जाना। कितना कितने देखो इत्थे ये चीज़ भेत रखना जो है, जैसे जल्दबाजी पेपर करोगे या ध्यान नाल नहीं करोगे तो इत्थे भी बच्चों ने ये देख के भेत रखना ये गलत करता सी प्रश्न। पर जो ध्यान नाल तुसीं पढ़िया होएगा, ग्रामर दे विच्चों भी सीधा ग्रामर दे विच्चों आंदे अंदर खाते सही जाना। ठीक है ना, इसदा साफ साफ लिखा होंदा उसे अर्थ ग्रामर च तुसीं पढ़ोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करे बिना तुसीं जो पूरे सिलेबस नूं कवर नहीं करते तो उत्थे इस तरह ही चले जाओगे तो नंबर पूरे मतलब कि तुसीं कहो जो 180 प्लस जो टारगेट है ना, 180 कि 185 प्लस का टारगेट थोड़ा वो अचीव नहीं हो सकता। उसनूं अचीव करने लिए पूरे सिलेबस नूं पहला तुहानूं 3-4 बार रिविजन करनी पेगी, फिर तुहानूं इन्हां दे MCQ की प्रैक्टिस, टेस्टां की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वो सारे तुहानूं करने पैणगे। फिर है अगला प्रश्न, हेठ लिखे शब्द जुटां विचों किस शब्द जुट दे शब्द का अर्थ एक दूजे तो उल्ट है। देखो देख लिया, हार शिंगार इकट्ठा बोलते आप, हार शिंगार, हासा मखौल, हाड़ी सोनी, रौनक मेला। हुण दसो इन्हां दे विच पुछिआ कि किस शब्द जुट दे अर्थां दा शब्दों का अर्थ एक दूसरे तो उल्ट है। मंडल के की है एंटोनिम, ज्यादा मतलब किस तरह आप एक दूसरे तो उल्ट ने। हार शिंगार इको गल है, हासा मखौल इको गल है, रौनक मेला पर है हाड़ी ए सोनी। ये हाड़ी का मौसम, ये सोनी का मौसम, ये बिल्कुल अलग अलग ने। इसका आंसर है सी। फिर उस तरह हेठ लिखियां विचों केड़ा शब्द सही है। ठीक है, ये भी जिस तरह कितना कितने जो शख्सियत शब्द है, शुद्ध अशुद्ध, ये उस टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तसद्दद, तुशद्दद, तशद्दद, तसद्दद। ठीक है ना, ये बहुत फर्क होंगे। अदक, अदक एक्चुअली की होंगे, अदक
जिथे अद्धक पै गया उत्थे मतलब कि अद्धक नूं दूजा आपां कहने दबा, मतलब कि आपां उस अक्षर नूं दो बार मतलब कि दबा पा के बोल रहे हैं। जिस तरह देखा होगा अद्धक का एक्चुअली आप समझते हैं इतने अद्धक किस एक होंगे बदल, ठीक है ना, मौसम बदल गया। तो होंगे बदल, ठीक है ना, अज बदल दिख रहे ने, अज मीह पऊगा। अद्धक नाल कितना फर्क पै गया, ये बदल ये बदल। हुण इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर है तशद्दद, ठीक है। हुण मेन गल है कि तुसीं इस तरह के शब्द है जो, ठीक है ना, इसकी अलग तो अपने को लिस्ट होनी चाहिए है। अपनी ग्रामर के विचों इत्थे भी असीं तैयारी करवाने, उस बच्चों को करवाने हैं कि हाँ तुसीं कुछ शब्द नोट करो कि, क्योंकि इसी तरह के शब्द होर आएंगे। जिस तरह पेपर च पहला गजल आया हुआ है, वो भी बिंदी वाला, पता चलता कि एक बिंदी वाले खास पूछते हैं। बाकी तुहानूं पहला जिस तरह मैं दस चुकिया वो हाहे वाले शब्द कुछ आते हैं, जिस तरह शहर, ठीक है ना, शहर, ठीक है ना। पहले तुहानूं मैं रूल दस के हटिया, हुण दसिया ना ये रूल, हाँ ये नहीं दसिया एक्चुअली, उसी सोरा यह शहर ये हाहे तो हूँ किसी को पता भी नहीं, अदर बोल देगी आप शहर कन्फ्यूज के नहीं, शहर लिखे तो शहर ही है, पर हाहे तो पहला वाले अक्षर नूं जे दुलावां लगियां होण तां हाहे नूं सियारी लगती है, ठीक है। तो इस तरह सही मीनिंग बन गया, सही स्पैलिंग इसके ये थे। तो पता अगला मैं हेठ लिखिया विचों केड़े शब्द उदास शब्द दे समान अर्थक हैं। हुण ये प्रश्न असीं बच्चों लिस्ट दी समान अर्थक शब्दों की, उस दे विच चारों दे चारों उदास शब्द असीं चार ही लिखवाए सेम, ठीक है ना। तुसीं ग्रामर भी फॉलो कर सकते हो, पंजाब बोर्ड की 9वीं 10वीं की ग्रामर है, ठीक है। पर अजकल जिस तरह कोविड के टाइम तो तुहानूं नहीं अवेलेबल होएगी मार्केट के विचों, पर तुसीं इस तरह के मन्यू IAS दे विच रिसोर्सिस दे विच जाके रजिस्टर कर सकते हो, तो उत्थे तुहानूं वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस हुणे प्रश्न देखो, तुसीं इसदा आंसर लगाओ। इसे डी ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है ना। जो डी ऑप्शन बता देना है 1 2 3 4, ठीक, क्योंकि उदास शब्द दे समानार्थक चिंतातुर, फिक्रमंद, निराश, उपराम, चारों के चारों उदास शब्द दे समानार्थक ने, ठीक है। तो कुछ चीज़ां तुहानूं इस तरह होणगियां कि तुहानूं आम अपनी नॉलेज चों अपनी जिंदगी दे विचों, क्योंकि पंजाब दे विच घरे बोलते भी हैं, समझते हैं भाषा नूं, तो पता होणगियां। पर कई शब्द यह जो हो सकते हैं उपराम में भी जो किसी ना पता होवे, क्योंकि ये व्याकरण पढ़न तो बाद तुहानूं इन्हां चीज़ां की नॉलेज होगी। ये अज अपना लास्ट प्रश्न है, मस्कीन शब्द का विरोधी शब्द है, ठीक है ना। मस्कीन शब्द का विरोधी शब्द है, हो गया। चलो देखो की लगाया मस्कीन का, डरपोक नहीं, इसका आंसर है हंकारी। मस्कीन मतलब कि कितना कितने हंकारी का उल्टा किया का वही मस्कीन, निम्रता आनी, ठीक है ना, जब बंदा अपने आप रिजर्व नेचर से होना, इस तरह। तो तुसीं हुण सारे अपना अपना देखो कि आज जो प्रश्न होए ने थोड़े किन्ने प्रश्न सही ने, बस मैक्सिमम तो मैक्सिमम तुसीं लगा के चलो जिन्ने प्रश्न पंजाबी दे आंदे ने तुसीं बस एक प्रश्न थोड़ा गलत हो सकता है, बस उस तो ज़्यादा प्रश्न तुसीं गलत नहीं करने किसी भी हालत दे विच, ठीक है ना। एक भी है इसलिए कह रहे हैं भी बहुत ही एक्सट्रीम केस दे विच हो सकता है कि चलो इंग्लिश टू पंजाबी वाला कुछ ऐसा प्रश्न आ गया, नहीं पता चलिया कभी जा कोई इस तरह का आ गया, पर अदरवाइज ठीक है। यही पोर्शन आ गया अपना हम स्ट्रैटेजी ते नाल ही इंपोर्टेंस। एक इंपोर्टेंस तो यह सी
कि मार्क्स के बेसिस ते कितनी इंपोर्टेंस है। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੋ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਤੇ, उसदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 80 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਚਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਘਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭੀ ਪੀਡੀਆ ਅਮਨਿਊ IAS ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਦ ਇਨ ਟਾਈਮ। ठीक है, कोई नेक्स्ट लेक्चर च मिलांगे। टाइम पता चल जाए कितना होया।